મંચસ્થ અને મંચ સમ્મુખ શુભ્ન વિદ્વાનો શ્રોતાજનો મારા પ્રણામ નમસ્કાર. આત્મીય મનીષજીએ જે પૃષ્ઠભૂમિ મૂકી છે બધાની સામે એ એટલી બધી સ્વયં સ્પષ્ટ છે કે આપણે સમગ્ર કાર્યનું હાર એમાંથી પકડી શકીએ છીએ. એમણે એક સરસ વાત કરી, એટલે મારી વાતની શરૂઆત પણ એનાથી કરું છું. વ્યક્તિ અને વ્યક્તિત્વની વાત કરી. વ્યક્તિ એ વ્યક્તિત્વ ક્યારે બને છે, આ વિષય મારા મનમાં પણ સતત ચાલતો રહ્યો છે અને એના જ અનુસંધાનમાં સ્વામી રંગનાથાનંદજીનું એક સુંદર વાક્ય મને કહેવાનું મન થાય છે. When a person transmits all his virtues, abilities, capacities to the society, becomes personality. વ્યક્તિ ત્યારે જ વ્યક્તિત્વ બની શકે છે કે જ્યારે પોતાનું સર્વસ્વ, પોતાના બધા ગુણો, પોતાની બધી ક્ષમતાઓ એ સમાજને સમર્પિત કરે છે, પોતાનું જીવન, પોતાનો સમય સમર્પિત કરે છે. અને આજે જે વિષય આપની સામે મૂકવો છે મારે, અને શિવોહમનું જે સુંદર સ્તોત્ર આપણે બધાએ સાંભળ્યું, એવું એક મને મારો ગમતો શ્લોક ભાષા માટેનો એ હું તમારી સામે મૂકું છું. કેયુરાન વિભૂષયન્તિ પુરુષમ હારાન ચંદ્રોજ્વલા ન સ્નાનમ ન વિલેપનમ ન કુસુમમ નાલંકૃતા મૂઢજા વાણ્યેકા સમલંકરોતિ પુરુષમ યા સંસ્કૃતા ધાર્યતે ક્ષીયન્તે ખલુ ભૂષણાનિ સતતમ વાગ્ભૂષણમ ભૂષણમ. આમાં વાણી માટે બહુ સરસ વાત કહેવાય છે. વાણી આપણે કેવી હોય? કેયુરાન વિભૂષયન્તિ પુરુષમ. ઘરેણા આભૂષણો કેવી એટલે બાજુબંધ જે રાજા મહારાજાઓ પહેરતા હોય છે, એ સાચા આભૂષણો નથી. કેયુરાન ન વિભૂષયન્તિ પુરુષમ હારાન ચંદ્રોજ્વલા. શ્વેત ધવલ ચંદ્ર જેવા ચમકતા હાર એ પણ સાચા આભૂષણ નથી. ન સ્નાનમ ન વિલેપનમ ન કુસુમમ. સ્નાન રોજ કરવું પડે છે, એ પણ કાયમી આભૂષણ નથી. વિલેપન જરા પફ પાવડર, લિપસ્ટિક, આ બધું પણ કાયમ ટકતું નથી. ન કુસુમમ. ફૂલ પણ અલ્પજીવી છે. મૂર્ધજા ના લંકૃતા મૂર્ધજા. કેશ વાળ ઓળ્યા પછી પણ એને વારંવાર ઓળવા પડે છે. અને આ બધું વાણ્યેકા સમલંકરોતિ પુરુષમ. તો આ બધામાં સાચું આભૂષણ શું છે? આ સંસ્કૃત કાર્ય કે જે આપણને સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ તરફ દોરી જાય છે, એવી વાણી છે. બાકીનું બધું તો ક્ષીયંતે ખલુ ભૂષણાનિ સતતમ. બાકીનું બધું તો ચોરાઈ જાય, ઘસાઈ જાય, કટાઈ જાય, ખોવાઈ જાય, એ બધું જ થાય. અને એટલા માટે સાચું આભૂષણ આપણી વાણી છે. અને આ વાણી એક છેવટે ભાષાનું વ્યક્ત અને શ્રાવ્ય રૂપ છે. એટલે એને આપણે કેવી રીતે વખાણવી જોઈએ? આપણી પોતાની ભાષા, પોતાની માતૃભાષા, જેમાં આપણું સત્વ, સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ સચવાયેલા છે, એને આપણે કેવી રીતે જાળવવું જોઈએ?
આ આપણા માટે પેચીદો અને મહત્વનો વિષય અત્યારે બનેલો છે, કારણ કે અમર્યાદ ઘેલછામાં આપણો સમાજ અત્યારે ખેંચાઈ રહ્યો છે. જો સીતા માતા જેવા સીતા માતાને પણ સુવર્ણ ગૃહની લાલસા જન્મી હોય ને રામને એની પાછળ દોડાવ્યા હોય ને પછી એમનું અપહરણ થયું હોય, રાવણે એને લઈ ગયો હોય, તો એવી જ ઘેલછા, અમર્યાદ ઘેલછા માતૃભાષાને છોડીને પરભાષાની આંગળી પકડીને વિકાસ કરવાની જે ઘેલછા છે, એ ઘેલછા બહુ નઠારી ઘેલછા જન્મી છે. અને એ આપણી સંસ્કૃતિનું અપહરણ કરી શકશે, કરી રહ્યું છે. આપણી સંસ્કૃતિનું અપહરણ બહુ સરળતાથી થઈ રહ્યું છે. આપણને ખબર નથી પડતી કે બિલ્લી પગે ભાષાની પાછળ સંસ્કૃતિ આવી ગઈ છે. મિત્રો, બિલ્લી પગે આવે છે, ખબર નથી પડતી. ક્યારે આપણે આપણી જન્મદિવસની ઉજવણીની પદ્ધતિ બદલી નાખી આપણને ખબર નથી, સમાજને ખબર નથી. હવે હેપી બર્થડે ટુ યુ અને તું જીવ હજારો સાલ ને આવું બધું અને મીણબત્તી બુઝાવવાની એ પ્રક્રિયાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. જાણે એના વિના ચાલતું નથી. હોટલમાં ગયા વિના અને પાર્ટી આપ્યા વિના ચાલતું નથી. પોતાની સહી પણ માતૃભાષામાં નહીં, મોટા ભાગના લોકો આપણે અંગ્રેજીમાં આપણી ઓળખ વ્યક્ત કરીએ છીએ, સહી કરીએ છીએ, હસ્તાક્ષર કરીએ છીએ. આપણને વાતે આપણે અંગ્રેજી શબ્દોની ભેળસેળ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. માતૃભાષાની સામે જબરજસ્ત પડકાર છે મિત્રો. એના અસ્તિત્વ સામે, એનું અસ્તિત્વ નામશેષ ક્યારેય નથી થવાનું. કારણ કે કેટલાક લોકો એવું કહે છે કે જ્યાં સુધી ઢોકળા, ખાખરા અને ગાંઠિયા અથાણું ખવાય છે ત્યાં સુધી ગુજરાતી ભાષા નામશેષ નહીં થાય. પણ એટલું પૂરતું નથી. આપણે એની સંસ્કારિતાની, એની ઉચ્ચતાની ચિંતા કરવી પડે એવું છે. એનું સત્વ જળવાયેલું રહે, એના શબ્દો આપણા લોકો ભૂલી ન જાય એની ચિંતા કરવી પડે એવું છે. આપણે આપણું દર્શન, આપણી સંસ્કાર, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી જે પરંપરાઓ છે, ટ્રેડિશન્સ છે, આ બધું જ આપણે એવી સરળતાથી ભૂલતા જઈ રહ્યા છીએ. આપણને ખબર પણ નથી પડતી કે આપણે ક્યારે આ ઇંગ્લેન્ડનું પરગણું બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. ભારતમાં રહીએ છીએ કે ઇંગ્લેન્ડમાં રહીએ છીએ એની ખબર નહીં પડે આપણને. મિત્રો, કોઈ ભાષાની સામે વિરોધ નથી. વાંધો વિરોધ હોઈ શકે નહીં. 6700 જેટલી ભાષાઓ આપણા જગતમાં અસ્તિત્વમાં છે. પણ એની સામે મને મુઝફ્ફર હુસૈને લખેલો એક લેખ બરાબર સ્મરણમાં છે. 1 ફેબ્રુઆરી 2004ના પાંચજન્યના અંકમાં, હિન્દી પાંચજન્ય જે આવે છે એના અંકમાં 1 ફેબ્રુઆરી 2004 એમાં એમણે એવા શીર્ષક નીચે લખ્યું છે કે જો વૈશ્વિકરણ આ જ ગતિથી ચાલતું રહ્યું તો 21મી સદીના અંત સુધીમાં વિશ્વની 2,500 ભાષાઓ લુપ્ત થઈ જશે. શું આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણી ભાષા પણ એની અંદર હોય? આપણને ખૂંચે એવું નથી, કઠે એવું નથી. અને એમાં એમણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે આ વૈશ્વિકરણ એ આપણી ભાષાના અસ્તિત્વ માટે મોટામાં મોટો અવરોધ છે કે મોટામાં મોટો દુશ્મન છે, એવું એમણે કહ્યું છે. એવું એટલા માટે કહ્યું કે કેટલાક લોકો, કેટલાક વૈશ્વિક સંગઠનો એવું ઈચ્છે છે કે જેમાં IMF હોઈ શકે, WTO હોઈ શકે, યુનિસેફ હોઈ શકે, બધા કેટલાય નામ લઈ શકાય છે. આ બધા સંગઠનો એવું ઈચ્છે છે કે સમગ્ર વિશ્વ એક જ સંસ્કૃતિમાં જીવે, એક જ ભાષા બોલે, એમનું દર્શન એક હોય, એમના સંસ્કાર એક હોય, એમની જીવનશૈલી એક હોય, એમનો ઇતિહાસ, એમની પરંપરા પોતાની ભૂલી જાય અને બધું એક જ વિશ્વ એક નાનું ગામડું છે એવી રીતે બધા જીવે. આવી જે એક વિચિત્ર કલ્પના કેટલાક લોકોને બહુ સારી લાગે કે આ તો કેવું સરળ વ્યાપક છે. અરે પણ વ્યાપકતાની સામે તમારું અસ્તિત્વ કેટલું જોખમાય છે એ તો વિચારીએ આપણે. એક વાત તો આપણે કહીએ છીએ કે આપણે ગામડા
વનવાસી ક્ષેત્રમાં કે બહુ ટ્રાઇબલ એરિયામાં રહેનારા જે લોકો છે એમની બોલી પણ ટકવી જોઈએ, એમની લોક સંસ્કૃતિ ટકવી જોઈએ, એવી પણ આપણી ઈચ્છા હોય છે. એની સામે આખી સંસ્કૃતિ છીનવાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે જાગી ન શકીએ. જાગવું જરૂરી છે મિત્ર. અને એટલા માટે આજે આપણે ભાષાની ચિંતા કરવી પડે છે. અને સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે આપણે પોતે જ આપણી ભાષાના અસ્તિત્વની ચિંતા કરવી પડે છે. કેટલાય લોકોને તો પોતાની ભાષાના શબ્દો જ ચડતા નથી. દિવસમાં આપણે પણ જો વિચારીએ કે કેટલા અંગ્રેજી શબ્દ, મારી અત્યારની વાતમાં 2-4 શબ્દો અંગ્રેજી આવી ગયા હશે, આપણને એના વિના ચાલતું નથી એવું લાગે છે. પણ ખરેખર આપણે જો થોડો અભ્યાસ કરીએ તો એની જરૂર ન પડે. હા, આપણું શબ્દ ભંડોળ વધારીએ, આપણી ભાષાના શબ્દોને ન ભૂલીએ અને વાપરીએ તો યાદ રહેશે, વારંવાર વાપરીએ તો યાદ રહેશે. એટલા માટે આપણા શબ્દોને આપણે ભૂલવા ન જોઈએ, ભૂલવા ન દેવા જોઈએ. મેં ઘણા લોકોને એવું કહેતા સાંભળ્યા છે મિત્રો કે મારા ફાધર ઓફ થઈ ગયા, મારો બ્રધર ઓફ થઈ ગયો. આ ઓફ એટલે કંઈ સ્વિચ છે કે ઓન ઓફ કરવાની સ્વિચ છે? તો બાળક જન્મે ત્યારે આપણે એવું કેમ નથી કહેતા કે મારું બાળક ઓન થઈ ગયું? આ જે સ્થિતિ છે, આપણે કેટલી સહજતાથી અંગ્રેજી શબ્દો વાપરી લઈએ છીએ. અને આપણને એ વખતે આપણને મારા પિતાજીનો દેહ વિલય થયો, એનું એ પરલોક ગમન થયું, એમનું કે એ કૈલાસવાસી થયા, આ શબ્દો આપણને યાદ જ નથી આવતા. કેમ નથી યાદ આવતા? કારણ કે આપણે વાપરતા નથી. અને કેટલીક ચિંતા પણ આપણને સતાવે છે કે કદાચ મને કોઈ વેદીઓ કહેશે. બહેનોને શું કહેવાય ખબર નથી મને. વેદીઓ શબ્દ માટે બહેનો શું કહેશે પોતાને ખબર નહીં. પણ આવું ચિંતામાં છે કે ભાઈ હું આવી રીતે સ્પષ્ટ ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરીશ તો મને લોકો શું કહેશે, મારા માટે શું માનશે. એ ચિંતામાં એક પ્રગત દેખાવાની લાલસામાં, પ્રગતિશીલ દેખાવાની લાલસામાં આપણે અંગ્રેજી પાડીએ છીએ. સાચું કે ખોટું? આપણને હું એમ કહું કે આપણા દેશના માત્ર 4% લોકો અંગ્રેજી બોલી શકે છે, લખી શકે છે, વાંચી શકે છે, એમાં અભિવ્યક્તિ કરી શકે. માત્ર 4%. 96%નું શું? જેને 96% મહત્વ મળવું જોઈએ એને 4% મહત્વ મળે છે, અને જેને 4% મહત્વ મળવું જોઈએ એને 96% મહત્વ મળે છે. આ આપણી કમનસીબી છે. આપણા ઘણા ગુજરાતી સાક્ષરો, સારસ્વતોએ બહુ સરસ લખ્યું છે. આ ભાષાની ભેળપૂરી વિશે વિનોદ ભટ્ટ, તમે બધાએ નામ તો સાંભળ્યું નથી, આટલો પ્રચલિત વ્યક્તિ અને ગુજરાતી ભાષામાં આપણને બધાને સરસ ગુજરાતીમાં હસાવનાર માણસ, આપણા ચહેરા પર હાસ્ય લાવી શકે વાતે વાતે, એ અને જ્યોતિન્દ્ર દવે જેવા લોકો આપણી પાસેથી ગુજરાતી હાસ્યકારો થઈ. વિનોદભાઈએ સરસ વાત લખી છે કે એક લેખ છે એમનો, લેખનું શીર્ષક છે ઉત્તમ માતૃભાષા માધ્યમ પર ઉત્તમ અંગ્રેજી, માતૃભાષાના ભોગે કંઈ નહીં. આવા એક લેખમાં એમણે લખ્યું છે, એક ઉદાહરણ આપ્યું છે ભાષાની ભેળપૂરી આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ એનું. એમણે કહ્યું કે એક વખત હું રસ્તામાં જતો હતો અને મારી સામે મારો એક મિત્ર આવતો હતો, હાફળો એ બચ્ચું બત્તી એમનું નામ. વિનોદભાઈના મિત્રનું નામ એમના જેવું જ હોય ને. બચ્ચું બત્તી આવતો હતો અને બચ્ચું બત્તી હાફળો એમ પહેરણ ફાટી ગયું હતું, કોણી છોડાઈ ગઈ હતી, કપાળ પર ધૂળ હતી, ક્યાંક લોહી નીકળતું હતું. મેં બચ્ચુને ઉપર રાખ્યો, ભાઈ શું છે બચ્ચું, શું થયું તને? બચ્ચું કે જવા દો વિનોદભાઈ, ગાયનેક પ્રોબ્લેમ. બચ્ચું તમે
હા, ગાય મારા નેક પર શીંગડું માર્યું. હવે ગાય મારા નેક પર શીંગડું માર્યું આવી ભાષામાં વાત કરે. વિનોદભાઈ પહેલી તો 1-2 મિનિટ સુધી તો હસવું ખાઈ નહીં શકે, પોતે હાસ્ય લેખક હતા. પછી એમણે કહ્યું કે બચું ભાઈ જો તું અત્યારે તને ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે, તું દવાખાને જા, જરા સાજો થઈ જા, પછી મારે તારું કામ છે, તું 3-4 દિવસ પછી મને મળજે જરા સ્વસ્થ થાય એટલે. બધું કે સારું વિનોદભાઈ, હું જરૂર આવીશ. ગયો, 3-4 દિવસે પાછો આવ્યો અને વિનોદભાઈ પૂછ્યું કેમ છે બચ્ચું, તારી તબિયત હવે કેમ છે? તો બચ્ચું કે વિનોદભાઈ જવા દો ને, હજી વોમિટિંગ સર્કલ્સ અને બધું ગેટ ટુગેધર થઈ ગયું છે. બધું જાણે બધાની મીટિંગો થતી હોય ને, ચક્કરની ને બ્લડ પ્રેશરની ને, ચક્કર આવે છે, વોમિટિંગ, બધાની મીટિંગ. કે હજી તો સુધર્યો નહીં બચ્ચું. આવું આવું જ અંગ્રેજી બોલ્યા કરે છે કે ગુજરાતી અંગ્રેજી શું બોલે છે ઘણી વખત સમજણ નથી પડતી. અરે કે જવા દો વિનોદભાઈ, આ કમિંગ થર્સડે મારા ફાધરનું 13th છે અને યુ હેવ ટુ કમ, ડોન્ટ મિસ. આવી ભાષામાં આપણા લોકો વાત કરે છે મિત્રો. આ તો એક એમણે ભલે કાલ્પનિક ઉદાહરણ આપ્યું હશે કે જે હોય તે, પણ એમણે અને આજની માતાઓ પણ કેવું બોલે છે, બેટા ઈટ કરીને સ્લીપ થઈ જાય. કારણ કે અંગ્રેજીમાં બોલવાનું હોય ને બાળકને. अच्छा हिंदी में बोलना ऐसी एक सूचना है. मैं हिंदी बोलूँगा, जितना हो सके उतना हिंदी में बोलूँगा. जहाँ गुजराती की आवश्यकता होगी वहाँ गुजराती बोलूँगा. मिक्स करके करेंगे जी, मिक्स करके करेंगे तो उनको समझ जाएगा, जिससे वो कवर भी. अच्छा, तो ऐसा था हमारे यहाँ गुजरात में एक गुजराती हास्य लेखक है विनोद भट्ट करके. और विनोद भट्ट ने एक बार ऐसा कहा कि मैं रास्ते में जा रहा था और मेरा एक मित्र सामने से आ रहा था, उसका नाम था बच्चू बत्ती उसके मित्र का नाम था. और वो ऐसे उसका कमीज फट गया था, ललाट में धूली लगी हुई थी, कहीं लहू निकल रहा था और श्वास दमन की तरह चल रहा था. तो विनोद भाई ने पूछा क्या हुआ बच्चों ने कहा कि विनोद भाई जाने दो गायनेक प्रॉब्लम हो गया है, गायनेक प्रॉब्लम. विनोद भाई ने कहा गायनेक प्रॉब्लम मतलब क्या है, व्हाट इज गायनेक? तू तो पुरुष है, तू स्त्री थोड़ी है. बोले कि नहीं, गाय ने मेरे नेक पर सींग मारा है. तो इस प्रकार से हम भाषा की भेदपूरी करते हैं. हमारी भाषा में स्पष्ट बोलते नहीं. अगर अंग्रेजी बोलना है तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलना चाहिए, विवेकानंद जी की तरह. अभी कल ही 11 सितंबर गई है, विश्व धर्म परिषद में जो उनका भाषण हुआ था, अद्भुत भाषण हुआ था. बोलना है तो ऐसी अंग्रेजी बोलिए, कोई बात नहीं है. और जब गुजराती बोलते हो, अपनी मातृभाषा में बोलते हो, तो स्पष्ट गुजराती में मातृभाषा में बात करनी चाहिए. बिल्कुल जहाँ तक संभव हो हमने हमारे शब्दों में बात करनी है, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कम से कम करना चाहिए. और ऐसा है कि हमारी भाषा जो है हम एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली बात होती है. भाषा जो है संप्रेषण जिसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ये एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए कभी कोई भाषा होती नहीं है. अंग्रेजी भाषा सीखने में हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर अंग्रेजियत आती है तो जरूर परेशानी है. अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजियत नहीं है. एक भाषा के रूप में जरूर सिखाएं, मगर हम क्या है कि एजुकेशन इन इंग्लिश या इंग्लिश इन एजुकेशन, इस प्रश्न का हम सब विचार करें कि एजुकेशन इन इंग्लिश होना चाहिए या इंग्लिश इन एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट होना चाहिए. ये हमें सोचना पड़ेगा. मगर हम तो हमारी पूरी जायदाद हमने लिख दी है अंग्रेजों को. हाँ, सब कुछ दे दिया कि जाओ हमारा सब कुछ तुम्हारा है. एक बात मैं बताऊं कि कुछ
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका भाव केवल हम मातृभाषा में ही पकड़ सकते हैं, केवल मातृभाषा में। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा कैसे समझाओगे? भाई ભીષ્મએ આવી પ્રતિજ્ઞા લીધી એ શાંતનું અને એ બધો જે ઇતિહાસ છે એની સામે તમે વાત કરવી તો તમે તમારી ગુજરાતી તમારી માતૃભાષામાં વાત કરવી પડે ભીષ્મની। ભીષ્મ प्रतिज्ञा कैसी प्रतिज्ञा थी वो? भीष्म प्रतिज्ञा थी। अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। भगीरथ प्रयास। और भगीरथ कौन था भाई? जिसने गंगा का अवतरण किया, इंजीनियरिंग स्किल का उस समय उपयोग किया, कौन था भगीरथ? तो समझाने के लिए भगीरथ प्रयास शब्द प्रचलित है हमारी। ये कहने से भगीरथ की तुरंत स्मृति आ जाएगी हमारे मन में। हम भीम पराक्रम कहते हैं, हरक्यूलस एडवेंचर नहीं कहते, हरक्यूलियन एडवेंचर नहीं बोलते, भीम पराक्रम। तो भीम पराक्रम कहने से तुरंत भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब सामने आ जाएंगे। महाभारत की कथा नजर सामने आएगी। तो ये जो हमारी संस्कृति की जो अभिव्यक्ति है वो हमारे कुछ शब्दों में होती है। जैसे मेघधनुष्य बोलने से हम सप्तरंगी मेघधनुष्य इंद्रधनुष की कल्पना बच्चे को दे सकते हैं। रेनबो कहने से वो कल्पना नहीं आएगी, नहीं आएगी। वैसे ही हम गुजराती में बोलते हैं, तमने बधाने खबर है कि भाई दीकरीनी बंगड़ी नंदवाई गई, बंगड़ी नंदवाई गई। तो ये अभी इसका मैं हिंदी नहीं कर पाऊंगा। बंगड़ी नंदवाई गई, दीकरी विधवा थी છે, એનો પતિ ગુજરી ગયો છે, उसका पति मर गया है, इसलिए उसकी बैंगल ब्रोक कर, बैंगल शायद ब्रोकन ऐसा बोलेंगे क्या? वो अच्छा नहीं लगेगा। हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति हमारे ही शब्दों में होनी चाहिए। दुकान વધારી, વેપારીઓ અહીંયા તો વેપારીઓ ઓછા છે, આમે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં વેપાર કરનારા બીજા બધા છે, અહીંયા તો નહીં જોઈએ એવો મને વિશ્વાસ છે। તો શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં વેપારની વાત, પણ આપણે બધા ગુજરાતના લોકો છીએ એટલે વેપારી જ્યારે દુકાન વધારે એટલે આમ આંચકારે ત્રણ અને પગે લાગે, કેમ? વધારે આપે છે, દુકાન બંધ કરે છે એવું નથી કહેતા। દુકાન બંધ કરી એમ ના બોલાય, દુકાન વધાવી લીધી એવું આપણે કહીએ છીએ। તો વધાવી લીધીમાં આ જે ભાવ છે એ સંસ્કૃતિનો ભાવ છે, સચવાયેલો, આપણી પરંપરા સચવાયેલી છે આમાં ક્યાંક। આ બધું આપણે કેવી રીતે સમજીએ અને સમજાવીએ? હજી એક સરસ ઉદાહરણ આપવા માંગીશું તમને। 1 થી 15 જરા બરાબર જોજો, ધ્યાન રાખજો। બેસતું વર્ષ, ભાઈ બીજ, અક્ષય તૃતીયા, ગણેશ ચતુર્થી, લાભ પાંચમ, રાંધણ છઠ, શીતળા સાતમ, ગોકુલાષ્ટમી, રામનવમી, દશેરા, ભીમ અગિયારસ, વાક બારસ, વાઘ નહીં હા, વાક વાણી, વાક બારસ, પછી ધનતેરસ, કાળી ચૌદશ અને દિવાળી। આમ મને અંગ્રેજી કરી આપું છું। શક્ય જ નથી મિત્રો, આપણી સંસ્કૃતિની અભિવ્યક્તિ આપણા શબ્દોમાં જ થઈ શકે। ઈંધોણીનું અંગ્રેજી કોઈ કરી આપે, ઈંધોણી, પાણીયારાનું કરી આપો, ચાલો, પનિહારીનું કરી આપો, અને શક્ય જ નથી મિત્રો। આ જરા આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે આપણા શબ્દો કેમ ભૂલી રહ્યા છીએ। આમાં આપણી લોક સંસ્કૃતિ સચવાયેલી છે, પરંપરાઓ સચવાયેલી છે। ઝવેરચંદ મેઘાણીને વાંચતા જ નહીં આવડે કોઈને, કાલના વિદ્યાર્થીઓને જે અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણતો છે ને એને નહીં આવડે, એને ખબર જ નહીં હોય કે ઝવેરચંદ મેઘાણી જેવું એક મહાન વ્યક્તિત્વ શું હતું, એમ નહીં ખબર પડે। ઉમાશંકર જોશી કોણ હતા? એને બિચારાને આમ મોઢું પ્રકાશીને જોઈ રહેશે। જેવી રીતે એક વખત હું ગયો તો કલોલ, તો કલોલમાં રોટરી ક્લબમાં મને માતૃભાષા માટે બોલાવેલો, કોઈ તમારા માતૃભાષા સમજાવવાની છે। હવે નસીબનું કરું કેવું કે જેમને ત્યાં રોકાયો તો હવે રોટરી ક્લબના પ્રમુખ એમને ત્યાં મારા પ્રવચન પછી સાથે ભોજન પછી એમને બેઠા હતા, અમે
પતિ પત્ની ને એમની એક દીકરી હતી, લગભગ 10-12 વર્ષની હશે. તો મેં દીકરીને પૂછ્યું, બેટા તું કયા ધોરણમાં ભણે છે? મમ્મી ધોરણ એટલે શું? હવે તેને ધોરણ નહીં ખબર નથી. એટલે હું તો સમજી ગયો કે આ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણી રહી છે. તો એ જાણી જોઈને મેં પૂછ્યું, બેટા કયા માધ્યમમાં ભણે છે? મમ્મી માધ્યમ એટલે શું? આ બધું શું પૂછે છે દાદાએ? એટલે આ આપણી સ્થિતિ છે. આપણા બાળકોને એપલ ખબર હશે, સફરજન ખબર નહીં હોય, ફેન ખબર હશે અને પંખો ખબર નહીં હોય, અને લાઇટ ખબર હશે અને બત્તી ખબર નહીં હોય. આ પ્રકારની જે આપણી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, આપણે આપણી ઓળખ ગુમાવી રહ્યા છીએ મિત્રો. અને આ બહુ મોટું ડેન્જર સિગ્નલ છે. હું જાણી જોઈને અંગ્રેજી શબ્દ વાપરું છું. બહુ ભયસૂચક આ સંકેત છે, આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. અને આપણે જો આ માતૃભાષાને આટલું ધ્યાન નહીં આપીએ માતૃભાષા તરફ, અને ભારતમાં તો 22 માન્ય ભાષાઓ છે મિત્રો, 22. આપણે અંગ્રેજી શીખવાની જેટલી ધગશ કે તમન્ના કે તત્પરતા હોય છે, એની સામે શું આપણને આપણી કોઈ ભાષાઓ શીખવાની તમન્ના ન જાગે આપણને? હું તમને કહું, બહુ મજાની કેટલીક ભાષાઓ છે. હા, આપણને દક્ષિણ ભારતની કેટલીક ભાષાઓ બહુ અઘરી લાગે, અને વાત સાચી છે, જ્યાં સુધી એના સંપર્કમાં ના આવી ત્યાં સુધી અઘરું લાગે છે. પણ હું ઇન્ડિયન બેંકમાં નોકરી કરતો હતો, 22 વર્ષ નોકરી કરી. એ વખતે બધા મદ્રાસના કેટલાક તમિળ ભાષીય અધિકારીઓ, અમારા પ્રબંધક અને ઝોનલ મેનેજર એવી બધી ઊંચી જગ્યા પર હતા. બધા આવે અને બધા વાતો કરે, એટલે મને કેટલાક તમિળ શબ્દો પણ આવડી ગયા. બોલતા તો આવડી જાય, લખતા કદાચ વાર લાગે. તો તમિળ શબ્દો કેટલા મજાના આવે છે. எப்படி இருக்கீங்க સર? તમે કેમ છો? எப்படி இருக்கீங்க? નંદા એટલે બરાબર છો? પછી જવાબ મળે, સૌખ્યમાં. સૌખ્યમાં. 1 થી 10 બોલું છું, જરા સાંભળજો. ઉર રંડ મૂંદ નાલ અંજ આર એળ અટક અંબોદ પત્તક. 1 થી 10. આ આપણે જાણીએ તો શું વાંધો આવે? મજા આવે. હા, આપણી ભારતની ભાષાઓ શીખવાની પણ આપણી પોતાની ધગશ જાગતી નથી. અને હવે સમય મર્યાદા મારે તો બોલવાનું હોય તો જરા સમય મર્યાદા પર હું જે અર્ક છે એ મારે કહી દેવો છે. બસ 5 મિનિટમાં મારું સમાપન થઈ જશે. એ સમાપનમાં મારે 2 ગીત ગાવા છે બીજી ભાષામાં. એટલે તમને બીજી ભાષા કેવી હોઈ શકે એનો પરિચય મળી જાય. એક ગીત હું ગઈશ મરાઠી ભાષાનું, એક કડી જ ગઈશ, આખું ગીત નહીં ગમે, એટલો સમય નથી. તો ગીતની મજા માણજો. ગીતની મજા એટલા માટે માણવાની કે બીજી ભાષા, આપણી ભાષાઓ કેવી છે મજાની. આજ એકદા પુનઃ સિંહનાદ હોદે, આજ એકદા પુનઃ તુતારી ભેરી વાજુદે, આજ એકદા પુનઃ સિંહનાદ હોદે, આજ એકદા પુનઃ તુતારી ભેરી વાજુદે. કરે સદર્જ તો નગાધિરાજ સાંડતો, આગ અંતરી પ્રચંડ શત્રુ મદ સિદેરિતો, માતૃભૂષ રક્ષણાસ સૈન્ય સત્સ હોદે, આજ એકતા પુનઃ તુતારી ભેરી વાજુદે. બધું સમજાયું બરાબર? હવે થોડુંક અઘરું આના કરતા કન્નડ ભાષાનું ગીત, એ પણ સમજાઈ જશે જ્યારે ધ્યાનથી શબ્દો સાંભળજો. કારણ કે બધામાં સંસ્કૃત શબ્દોની છાટ છે. તત્સમ, તદ્ભવ, આપણી ભાષામાં જે છે આ બધું, આ વેરિએશન, આપણે અરબી, ફારસી, ઉર્દુ બધા શબ્દોને સ્વીકાર્યા છે, આપણી ભાષાને સમૃદ્ધ બનાવી છે. કન્નડ ભાષા પણ શીખવા જેવી છે. મરાઠી, કન્નડ, બંગાળી, પંજાબી, આ બધી જ ભાષાઓને આપણે તો સીધી ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજી, આઇલેન્ડ એ જ બધું દેખાય છે, બીજું કંઈ દેખાતું નથી. પણ આ પણ શીખવાનું. બસ તો આ મારો છેલ્લો અંશ છે મારા પ્રવચનમાં.
धरि अवतरिसी स्वर्ग स्पर्धेयु सुंदरताई मेलवू नम्मिताई नेलवू देवी निम्नय सौभगिन महिमेय बन्निसल सदळवू नम्मिताई नेलवू धवल हिमालय मुकुट मेरगु काल तोळे उतरिजे जलधिय भुरुगु गंगा बयलिदु हसिरिन सेरगु कण कण मंगलवु नम्मिताई नेलवु नम्मिताई नेलवु। સમગ્ર સારું એક જૈન મુનિનું થોડા વાક્યો વાંચીને મારી વાત પૂરી કરી દઈશ. ઉપન્યાસ એટલે કે મુનિશ્રી મુક્તિ વલ્લભ વિજયજી મહારાજના વાક્યો છે આ બિલકુલ બધા અંકે ગાંઠે કરી રાખજો, સાંભળજો બરાબર. ભાષા એ સંસ્કૃતિની વાહક છે. આપણી સંસ્કૃતિ દયા અને પરોપકારની સંસ્કૃતિ છે, સંયમ અને સદાચારની સંસ્કૃતિ છે, શ્રદ્ધા અને ભક્તિની સંસ્કૃતિ છે, સ્નેહ અને સંબંધની સંસ્કૃતિ છે, નીતિ અને નિષ્ઠાની સંસ્કૃતિ છે. ખૂબ ઊંચા આદર્શોને અભિમુખ રહેલી આ સંસ્કૃતિ છે. ખૂબ ઉમદા જીવન મૂલ્યોને વરેલી આ સંસ્કૃતિ છે. ઈશ્વરીય વિભૂતિઓ તથા સંતો મહંતોથી પ્રાદુર્ભૂત થયેલી અને સિંચન પામેલી આ સંસ્કૃતિ છે. આપણી ભાષાઓમાંથી સંસ્કૃતિની સુગંધ પ્રસરે છે. ભાષા સાંસ્કૃતિક પ્રતીકોને પ્રકાશિત કરે છે અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોને પ્રવાહિત કરે છે. ધન્યવાદ. નમસ્કાર. देवेंद्र गिग जी, पीयूष माकन जी, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं इस मूर्धन्य विद्वान मंडली, मैं सबको विनम्र अभिनंदन ज्ञापन करता हूं. मुझे राजनीतिक व्यस्तता के कारण आने को मना नहीं था, इसलिए मना कर दिया था. 2 दिन से इतना लगातार प्रेशर हुआ, अंततो गत्वा मेरे को आना पड़ा और आकर के मैं गदगद हो जाता हूँ. इस मूर्धन्य विद्युत मंडली के सामने मेरा श्रद्धा निवेदन करने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपसे विनम्र कृतज्ञता और आभार प्रकट कर रहा हूँ. साथ ही साथ मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ मैं सुंदर गुजराती में बोल नहीं पाऊंगा और मैं समझ में नहीं पाया. कुछ बंधुओं ने कृपा करके मेरे लिए वनी हर्षद शाह जी को निवेदन किया हिंदी में बोलो, और नहीं तो प्रताप सड़गी कुड नॉट एंजॉय द फॉर्म, वो बेचारा बैठ करके. इसलिए मैं आप सबको भी जिन्होंने ये प्रेशर किया इनको भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ. और साथ ही साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर ये जो चर्चा हो रहा है इसमें कोई अराष्ट्रीय भाषा में बोलने को मेरा आग्रह नहीं है. मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन निवेदन करता हूँ कि मेरा हिंदी बहुत ही दुर्बल है और टूटी फूटी होगी, इसलिए माफ कीजिएगा. फिर भी मैं मानता हूँ भाषा भाव का संवाहक होता है, इसलिए भाषा से भाव भी जोड़ होता है. मैं कोशिश करूंगा, ये विषय अत्यंत गंभीर है और मेरा ज्ञान भी बहुत सीमित है, समय भी सीमित है. मैं कोशिश करूंगा, मैं इसके लिए न्याय तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भारत माता की आरती उतारने की विनम्र प्रचेष्टा करूंगा. ये कल्पना जिन्होंने किया ऐसा शिक्षा संगम का, मैं उनके चरण में प्रणाम करता हूं. ये एक दिव्य कल्पना है. जब पूरे विश्व में कहीं पर सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, यूनान मिस्र का जन्म नहीं हुआ था, अमेरिका यूरोप का कल्पना भी नहीं हुआ था, और अरण्य में नील रंग में शरीर को रंजित करके उलग्न रह करके कभी कभी नरमांस भोजन कर खाद्याभाव में भाषा न होने के कारण संकेत के माध्यम में भाव विनिमय करता हुआ ये यूरोप अमेरिका जिनको हम आज आदर्श मानते हैं, तब हमारे देश में एक संस्कृति संपन्न महान राष्ट्र का विकास हुआ था और हमारा पूर्वजों ने
कृणंदो विश्व मार्यम का महान उद्घोष करके संपूर्ण विश्व में ज्ञान और वितरण करने का साहस प्रदर्शन किया, जिनका हम स्वर्धित उत्तरदायक है। और अति प्राचीन काल से हमारा राष्ट्र का विकास हुआ, कोई सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी या डिवाइन राइट थ्योरी में नहीं। हमारा सनातन ऋषियों का ध्यान लब्ध भारत माता विश्व का सर्व प्राचीन राष्ट्र के रूप में आविर्भूत हुआ है। और इस देश का नागरिक होने के कारण हमको गर्व करना चाहिए। कल गया सितंबर 11 स्वामी विवेकानंद का चिकागो एड्रेस का तिथि है। स्वामी विवेकानंद ने चिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियंस में भाषण देते हुए जो बोले, सिस्टर्स ऑफ एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of mother religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. एक गर्व का, एक स्वाभिमान का भाव निकल आया। गर्व किसके लिए? अपने लिए नहीं, जिस महान संस्कृति का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं इसके लिए। हम सारे विश्व को गणित, कला, साहित्य, विज्ञान, भूगोल, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा शास्त्र का शिक्षा दिया है। कल्पना करो, अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता है इस पावन भूमि में, तो गणित कितना अपूर्ण हुआ होता। पदार्थ विद्या, रसायन विद्या, हमारा चिकित्सा विद्या अरब व्यापारियों के द्वारा ग्रीस में प्रवेश करते हुए अमेरिका, यूरोप, समग्र विश्व भूमंडल भ्रमण करते हुए फिर इधर वापिस आ गया। ऐसा एक महान विभूतियों का देश भारत माता, ये देवर्षि वंदनीय आर्य वसुंधरा भगवती भारत माता हमारा जन्मभूमि है, ये हमारा गर्व का कारण है। आज हम कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, जब उनके देशों में एक स्कूल तक नहीं हुआ था, हमारा देश में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, कुरुक्षेत्र था। हर एक विद्या में यहाँ अनुसंधान होता। आज अंग्रेजों ने हमको शिक्षित कर दिया, ऐसा एक धरना हमारा प्रबुद्ध वर्ग में है, और उन्होंने हमको राष्ट्र बना दिया, ऐसा धरना नहीं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के ऊपर क्या बोला? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। What is education? Is it book learning? No. Is it diverse knowledge? Not like that. The training by which the current and expression of will are brought under control and becomes fruitful is called education. Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot undigested all your life. एक दुर्बल व्यक्ति था, वो जाकर के वैद्य सम्मेलन में पूछा, महाराज, सभापति को पूछा, मैं प्रतिदिन एक पाव घी खाता हूं, मैं क्यों तगड़ा नहीं होता हूं, स्वास्थ्यवान नहीं होता? सभापति ने उनको पूछा, किसने बोला तुमको घी खाने के लिए एक पाव? नहीं, बलशाली होने के लिए मैं खाता हूं, यह तो स्वास्थ्यवर्धक है। अच्छा, तुम जाओ, प्रतिदिन तुम्हारा सारा मन को लेकर के गर्म करो और पाव को घी तुमको वापिस मिल जाएगा। यानी तुम कितना खाते हो इसके ऊपर तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं निर्भर करता है, तुम कितना पाचन करते, कितना हजम करते हो, कितना जीर्ण करते हो, आप कितना पढ़ाई किया, इससे आपका ज्ञान निर्भर नहीं करता है। आपका ज्ञान निर्भर करता है आप कितना आत्मसात किया, अपना चरित्र का अंग बनाया, अपना व्यक्तित्व का अंग बनाया, इससे ज्ञान नहीं। विवेकानंद कहते थे, a nation is not great and good because its parliament in essence said that. A nation is great and good because its people are great and good. आजाद देश के हम नागरिक हैं। आज हमारे देश में क्या दिखाई देता है? ये स्टेप पर 425 करोड़ लूट करके देश को जेल चला गया। पार्लियामेंटेरियंस कंपनी के दलाली करके, सवाल पूछ करके डिसमेंबर हो गए, पार्लियामेंट को कलंकित करने का कोशिश किया है। डॉक्टर ऑपरेशन टेबल में लाखों रुपया घूस मांगता है, क्रिकेटर मैच फिक्स करता है, और सिनेमा स्टार जो हमारे देश के नवयुवक का हृदय सिंहासन मंडन करते हैं, हीरो, नकली हीरो उनका हृदय बैठ जाते हैं, वो सिनेमा स्टार दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर के AK-47 ला करके जेल चला जाता है, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्वतन जस्टिस भी वकालती करते हैं, उनको छोड़ दो, क्योंकि वो उनका पिता पार्लियामेंटेरियन था, वो ऐसा कर दिया, वो गांधीगिरी में नाटक किया। कोई गांधीगिरी में नाटक करने से गांधी बन जाता है? ये कैसा कुतर्क, क्यों ऐसा हो रहा है? विज्ञान के द्वारा बेईमान को ईमानदार नहीं बना जा सकता, भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बनाया जा सकता है, देशद्रोही को, गद्दार को देशभक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति का द्वार खटखटाना पड़ेगा। हमारा संस्कृति का आधार क्या है?
मनुष्य निर्माण। स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत को वापिस आए अमेरिका से। अमेरिका से जब वापिस आए, उनको किसी भक्त ने पूछा, स्वामी जी, यू आर हैविंग सो मच ऑफ स्पिरिचुअल पावर, व्हाई कैन यू ब्रिंग फ्रीडम फॉर मदर इंडिया? Swami ji promptly replied, yes, I can bring freedom to Mother India tomorrow only. But where are the men who can give up this freedom? Men, these are wanted. Rest will take care of itself. But strong, vigorous, believing young man and since to the backbone, 100 such, and the world becomes revolutionized. Aaj Vivekananda must be dancing with joy, because thousands of young men, fired with this zeal of holiness, ready to give up their life for the sake of our nation. They have responded to his clarion call. विवेकानंद का इस आह्वान का प्रत्युत्तर भारत का तत्कालीन नवयुवक ने दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, दिनेश गुप्ता, विनय बोस, बादल बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रीति लता देवी, स्वर्णलता देवी, हस्फाकुल्ला खां, बागा यतीम, लाखों युवक युवतियां वंदे मातरम की पंचाक्षरी मंत्रोच्चार में भारत का गम को प्रकंपित करते हुए फांसी के फंदा को चूम लिया, अथवा ब्रिटिश बाहिनी के साथ लड़ते लड़ते अपने को खंड विखंडित करके रक्तांजलि अर्पण कर दिया भारत माता के। कुछ लोग बोलते हैं बिना रक्तपात में हमें आजादी मिल गया, ये चमत्कार हो गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। बिना रक्तपात में हुआ तो जलियांवाला बाग ने क्या किया? क्या किया उधम सिंह ने? हृदय का रक्त तर्पण करके ये उत्तर दिया, ये आह्वान। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, आगामी 50 साल तक तुम्हारा एकमात्र आराध्य देवी भारत माता होना चाहिए, बाकी देव देवी को भूल जाने से कोई परवाह नहीं। एकमात्र हमारा जीवन जागृत राष्ट्र देवता और भारत माता पशु बलि नहीं चाहती है, नर बलि चाहती है, सहस्त्र नर बलि, जीवक बलि। और इसका उत्तर उन्होंने दे दिया। भारत को आजादी मिली। जब आजादी मिला, देश खंडित हो गया। देश का खंडन क्यों हुआ? देश का खंडन अपरिहार्य नहीं था। महात्मा गांधी ने बोला, माय होल सोल रिवेल्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन, इंडिया विल बी डिवाइडेड एंड बाइटेड। परंतु उनकी आंखों के सामने देश का विभाजन। नेहरू ने बोला, पार्टीशन इज ए फैंटास्टिक नॉनसेंस। पटेल ने बोला, पार्टीशन इज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकेबल प्रपोजिशन। इन दिग्गज नेताओं का आश्वासन व्यर्थ हो गया। हिंदुस्तान का विभाजन हो गया इसके कारण कि भारत की संस्कृति के बारे में हमारा गलत व्याख्या के कारण। हमने सोचा भारतीय संस्कृति मिलित संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति। आज भी यही सोच चल रहा है, हम एक राष्ट्र नहीं है, वो महादेश है। ये गलत व्याख्या के कारण हिंदुस्तान का विभाजन हो गया। और भारत का आजादी के लिए हम सबका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। भारत का पुत्र रूपी समाज ही भारत का भविष्य निर्माण करेगा। इसी विचार से परम पूज्य ने डॉक्टर हेडगेवार ने संघ का निर्माण किया। भारत किसका है? भारत इसका पुत्र रूपी समाज है, ये है हिंदू समाज। हिंदू समाज बोलने से कोई मत पंथ का बात नहीं है। सबसे वैज्ञानिक व्याख्या दिया सावरकर ने, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्या भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू। जो इसमें जन्म हुआ है वो मातृभूमि मानता है। जो इधर नहीं है, 3 जनरेशन से गए बाहर अमेरिका में रहते हुए, वो सोचते हैं कि हमारा पूर्वजों ने भारत से आए, ये हमारा पितृभूमि है। और जिनका इस भूमि से कोई संबंध नहीं है, आनी वेशा, सिस्टर निवेदिता, श्री मां, जो इस भूमि को पुण्य भूमि मोक्ष भूमि मानते हैं, हम इनको भी हिंदू मानते हैं। ऐसा उदार दृष्टिकोण से हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। और ये हिंदुत्व क्या है हम देखेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा शिक्षा क्या है? विदेशियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा अपना इंपीरियलिस्टिक डिजाइन को चरितार्थ करने के लिए जो भयानक शिक्षा पद्धति दर प्रवर्तन किया गया है, आजादी के 75 साल बाद इसको चलाने का कोई आवश्यकता नहीं। और इसको परिवर्तन करने का विचार कई सालों से हो रहा है, लेकिन हमारे तथाकथित सेकुलरिस्ट वामपंथियों ने इसको भयानक विरोध कर दिया है। परंतु हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने हिम्मत करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि पॉलिसी निर्माण करना और उसको क्रियान्वयन करना, इसमें कुछ अंतर होता है। इसलिए भी कुछ कदम लिया। एक अध्यापक ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर में 2 घंटों तक विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया।
बालक पानी में गिर गया, साइड में एक बच्चा खड़ा होकर के बोला, सर इसको कृपया उद्धार करिए। वो बोले, नो नो, आई डोंट नो द आर्ट ऑफ स्विमिंग, आई नो ओनली द साइंस ऑफ स्विमिंग, देन योर टीचिंग इज यूजलेस। वैसा ही अगर हम इसको क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं तो ये निरर्थक है। इसके लिए आदर्श शिक्षक चाहिए, टीचर्स ओरिएंटेशन चाहिए। और आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया, ये इस गैप को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इसलिए सराहनीय है, ये वंदनीय है। मैं आपको कृतज्ञता प्रकट करता हूं। गुजरात हमारा मार्गदर्शन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं कि उड़ीसा का गुजरात के साथ बहुत बड़ा संबंध है। बहनों और भाइयों, आज हमारा विषय इसी परिविषय में होता है कि भाषा द्वारा संस्कृति का संपर्क और सामाजिक समरसता। ये बहुत बड़ा विषय है। भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। अभिव्यक्ति का कई प्रकार का माध्यम होता है। कभी कभी साइलेंस इज ए बिगर एंड स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। और स्वामी विवेकानंद कहते थे, हार्ट स्पीक्स मोर क्लियरली एंड इट इन मोस्ट अनमिस्टेकेबल लैंग्वेज। हृदय का भाषा भी अपराध होता है। फिर भी भाषा एक अद्भुत माध्यम है। पशुओं को भाषा का अधिकार नहीं, सिर्फ मानव को ही अधिकार है, और मानव इसका दुरुपयोग भी करता है। भाषा संस्कृति का संवाहक होता है, और भाषा कभी कभी संस्कृति का परिपंथी भी बनता है। ये किसके हाथ में पड़ेगा? भाषा एक निर्दोष तत्व है, जैसे अग्नि एक निर्दोष शक्ति है। अगर दुष्टों के हाथ पड़ेगा तो वो सर्वनाश करेगा, और सज्जनों के हाथ पड़ने से आपको रसगुल्ला करके दे सकता है, महाप्रसाद करके दे सकता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद् दानाय ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। इसलिए सबसे शिक्षा का मूल आधार है मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण। हमारा प्रश्न में कहा गया है, साधु युवा अध्याय हो आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठो मेधावी। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य है पहले साधु युवा चरित्रवान निर्माण, उसके बाद अध्याय, उसके बाद स्टडी की बात आती है, उसके बाद आशावान पहुंच जाएगा तो आशा का निर्माण हो जाएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। हमारे एकलव्य को चुनौती का सामना करना पड़ा। रॉयल स्कूल में उनको एडमिशन करने का अनुमति नहीं मिला, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, आप तो ऐसा करने से कोई जेल चला जाएगा। उस समय में रुल्ला मुल्ला नहीं था। एकलव्य आया, वो जुलूस नहीं निकाला, प्रोसेशन नहीं निकाला, केस करने को नहीं गया, वो डिप्रेशन में नहीं आया, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा उनका। वो इसको चुनौती को स्वीकार किया और बोला, जो गुरु शक्ति सर्वत्र विद्यमान है, इसमें मेरा प्रवेश तो कौन रोक सकता है ब्रह्मांड में। वो जाकर के खुद उनका मूर्ति बना करके जंगल में उनका एकाग्रता और श्रद्धा के द्वारा ऐसा ज्ञान का अर्जन किया, जो 12-14 साल तक द्रोणाचार्य के समीप में रह करके पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए शस्त्र शास्त्र का अध्ययन किया और उनको परास्त कर दिया। 105 भाइयों को परास्त कर दिया। द्रुमद दुर्योधन से लेकर के वीर श्रेष्ठ अर्जुन तक से परास्त हो गए। द्रोणों का अहम को आघात लगा, जिनको मैंने मना कर दिया था, इतना पुरुषार्थ उन्होंने कर लिया। द्रोणाचार्य एक सामान्य गुरु थे, कोई असामान्य व्यक्तित्व का अधिकारी नहीं थे। वो आचार्य भी नहीं थे, उनका शास्त्रीय मान्यता उपाध्याय, आचार्य का मान्यता नहीं था। यदि भी उनका शिष्य लोग उनको कभी कभी कल ज्वाइन करने वाला लेक्चर को प्रोफेसर भी कह देते हैं, ऐसा ही द्रोणों को आचार्य कहा गया, शास्त्रीय मान्यता आचार्य। द्रोणाचार्य ने उनका अंगुली काट दिया। ये कैसा है? ट्यूशन मास्टर जैसा कपी देते हैं, आज भी ट्यूशन मास्टर ये काम करते हैं, मैंने देखा, कपी देते हैं, परीक्षा में खाता करते हैं, राष्ट्रद्रोही काम करते हैं। वैसे ही द्रोणाचार्य पुलिस ट्यूशन में था, उन्होंने एक बार पाप कर लिया, प्रतिभा का हरण करने का कोशिश कर ली। ऐसा गुरुकुल कलंक द्रोणाचार्य हमारा राष्ट्र का कलंक बनते हैं। लेकिन एकलव्य जैसा विभूति असामान्य होते हैं, और इनको खोज खोद कर निकलना और राष्ट्र निर्माण में उनको योगदान करवाना, यह शिक्षा का उद्देश्य है। प्रतिभा किसी विशेष गोष्ठी का संपत्ति नहीं होता है, मोनोपोली नहीं होता है। हमने देखा वनवासी बालक भी घंटों तक संस्कृत में भाषण दे सकते हैं, से प्रतिभा अंतर नहीं थे। शिक्षा का मूल तत्व ये, a teacher spoils everything when he thinks that he teaches. Everything is within. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, perfection already within. That means you have not to achieve perfection. You have not to invent perfection. You have not to obtain perfection. It is already within. You have to discover it. How? एक शिल्पी ने एक प्रस्तुत मूर्ति निर्माण कर दी। पीछे में एक दर्शक आ गया,
तल्लीन शिल्पी का एकाग्रता देख करके मंत्रमुग्ध होकर के चुपचाप पीछे खड़ा होकर के घंटों तक देखता रहा। बाद में उनका धैर्य का बंधन टूट गया। बोला, वाह वाह शिल्पी, तुमने तो निर्जीव पाषाण के गात्र में प्राण का प्रवाह सृष्टि कर दिया। शिल्पी ने पीछे देखा, बोला नहीं भाई, प्राण का प्रवाह तो इसके अंतर्गत बराबर था, मैंने निष्प्राण अंश को निकाल दिया, प्राण का प्रवाह स्वतः प्रकटित हो गया। आई ओनली रिमूव द नॉन-एसेंशियल पार्ट्स एंड द इनर वाइटलिटी के अमाउंट। हमारे बच्चों के अंतर्गत ये सब है। आज हम प्रोसेसिंग कितना करते हैं, जो खनिज निकलता है, क्रूड एनर्जी, कोयला हो, पेट्रोल हो, इसका प्रोसेसिंग में कितना पैसा खर्च होता है, कितना इंजीनियरिंग बुद्धि खर्च होता है, और कितना कीमती चीजें निकलता है। कोयला से रेडियम आता है, कोयला से हीरा बनता है प्राकृतिक उपाय में। ये अविश्वास होने पर भी सत्य है। ऐसा हमारे सामने बैठने वाले विद्यार्थी सामान्य होने पर भी इसमें अंतर्गत जो असामान्य प्रतिभा विकसित होगा, वो भारत की भाग्य आकाश में नक्षत्र की भांति चमकेगा, वो इतिहास को बदल देगा। ये विश्वास हम जितना जल्द करते हैं उतना ही मंगल है इसके लिए। और इतने करने से बाद उसको एक सम्मान आदर के भाव में राष्ट्र निर्माण की महाभारत लेकर के हमको आगे बढ़ना है। बहनों और भाइयों, जिशाई मूर्ति के अंतर्गत एक प्रतिमा का दिव्य रूप अंतर्निहित होता है, ऐसा हमारे सबके अंतर में ईश्वर की ऐसा दिव्य रूप विराजमान है, और इसको निकालना शिक्षा का मूल उद्देश्य। और भाषा इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हजारों भाषाएं हमारे देश में, विदेश में, पूरे विश्व में। ये हजारों भाषाओं का मूल तात्पर्य क्या है? हम अभिव्यक्ति करते हैं, परस्पर की संवाद करते हैं। भाषा का शिक्षा कैसा होता है? भाषा की शिक्षा पहले श्रवण से होता है। एक दिन था संभवतः भारत में जब संस्कृत हमारा लोक भाषा था, अन्यथा ये हजारों नाटक, साहित्य, काव्य, कविता क्यों केवल राजाओं के विलास के लिए तो नहीं हो सकता। एक दिन था, और ये जो भारतीय भाषा ऐसा की विदेश भाषा, इसका भी मूल भाषा संस्कृत। अंग्रेजी भाषा भी संस्कृत संभव है। अंग्रेजी से जो मातर शब्द हम बोलते हैं, हमारा मातर शब्द संस्कृत में मातर से माटर, माटर लाटिन ग्रीक में होकर के मातर, पीतर। अंग्रेजी में 50-60 साल पहले पीटर शब्द का बहुत प्रचलन था। द वर्ल्ड पीटर गिलगन आई आल्सो स्टडीड इन माय स्कूल डेज। ये क्योंकि वो त उच्चारण नहीं कर सकते, उनका ध्वनि विज्ञान इतना अपूर्ण है, ये त उच्चारण नहीं करते, ती में ता और ट दोनों। और पाटर पीटर होकर के फिर फादर अंग्रेजी में आ गया, ब्रदर से भ्रातर से ब्रदर, द्वितर से डटर, पथ से पाथ, पंच से पंच, मानव से मैन, दो से काउते। हजारों अंग्रेजी शब्द साक्षात संस्कृत याद है। ऐसा संस्कृत हमारा राष्ट्रभाषा नहीं, विश्व भाषा। एक व्यक्ति को तो अपना मातृभाषा शिक्षा करना चाहिए, और अपना मातृभाषा के साथ साथ जो राष्ट्रभाषा आज हिंदी, इसको भी सीखना चाहिए। और हमारा भारत का प्राण स्वरूप संस्कृत भाषा को भी शिक्षा करना चाहिए। आज मैं देखता हूं कई प्रदेशों में ऐसा होता है, मातृभाषा के प्रति एक विरक्ति का, जो बाहर में रहते हैं अपना बच्चों को मातृभाषा सिखाते। मातृभाषा सीखने के लिए कोई परिश्रम नहीं है, अपने आप में सीख जाएंगे। घर में अगर बातचीत करेंगे तो सीख जाएंगे। भाषा शिक्षा कैसा होता है? 3 पदार्थ, 3 विषय को परमात्मा ने हमको दिया है। ये ईश्वर प्रदत्त उपहार का अपमान करना महापाप है। एक जैसा हमारा बाप, मेरा बाप कौन होगा? मैं इसको चयन करके, ईश्वर को प्रार्थना करके नहीं लाया, परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर का ये वरदान को अपमान करना महापाप है। इसलिए माता का आदर। वेद में कहा गया है मातृदेवो भव, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान श्री राम ने कहा। इसलिए माता वो है जो मुझे दुनिया का आलोक दिखाया, कितने कष्ट सहते हुए मेरा जीवन को विकसित किया। ये साक्षात परमात्मा का प्रतिमा स्वरूपा माता को अपमान करना आज हमारे देश में क्या हुआ है? श्रवण कुमार का देश में आज कानून लाना पड़ता है कि माता पिता को पालन पोषण करो। कितना माता पिता ऐसे हैं जो कोर्ट में जाकर के अपना अधिकार सुरक्षित कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। हमको इस दिशा में, क्योंकि हमारा भाषा, हमारा संस्कृति के ऊपर आग्रह रिड्यूस हो गया, कम गया है, इसलिए ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आया है। विदेश में क्या होता है? उधर अपना छोटा सा परिवार, न्यूक्लियस फैमिली। आज हमारा न्यूक्लियस फैमिली आता है कि हमारा संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा आक्रमण है, हमारा विशाल परिवार को तोड़ना है। अंग्रेजों ने, यूरोप ने, ये भयानक सांस्कृतिक आक्रमण से हमको बचना चाहिए। और दूसरा है मातृभूमि। मेरा मातृभूमि कौन होगा?
क्या मैंने चयन करके लाया? परमेश्वर ने दिया। और हम सौभाग्यवान है भारत में पैदा हुए। दुर्लभम मानुष्यम तत्रम भारते, भारत में जन्म होना ये गायत्री देवा किलगित कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भारत भवन्ति प्रिया शास्त्र। इस भारत में की वंदना करने के लिए कितना ऋषि अवतार अपना जीवन को समर्पित कर दिया। भगवत पाद आद्य शंकराचार्य कहते हैं प्रातः स्मरामि सोदामि वरदामि वरेण्यम सिंधूर्मि दौत शरणम सुधियाम शरणिम। ये भारत हमारा। स्वामी विवेकानंद कहते थे ये भारत माता हमारा एकमात्र जीवंत जागृत देवता, आंखों की लोतक से नहीं हृदय की सोनित से भारत माता की पदवंदना करो नवयुवक। श्री अरविंद कहते थे भारत माता ये मृत्तिका का विस्तार नहीं है, साक्षात महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महेश्वरी स्वरूपिणी चिन्मयी जगत जननी भारत। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मैं हूं भारत माता। हिमालय मेरा तुषार मुकुट है, कन्याकुमारी मेरा विस्तारित चरणद्वय है, सौराष्ट्र और गंगा सागर मेरा विस्तारित बाहुत्व है। मैं जब चलता हूं भारत माता चलती है, मैं सो जाता हूं तो माता सो जाती है, मैं जागृत होता हूं तो माता जागृत होती है। और बंकिम चंद्र कहते हैं तुम ही दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमल दल विहारी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। और रविंद्र ठाकुर कहते हैं यही भारतेर महामानवीय सागर है। आज इस देश में सब बेईमान आते हैं जो बोलते हैं कि भारत को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। ये क्या है, क्यों है? ये हमारा भाषा और संस्कृति का अपमान होने के कारण, ये अंग्रेजियत के कारण, ये सांस्कृतिक आक्रमण के सामने माथा झुकाने के कारण, और भारत को मिली जुली संस्कृति मानने के कारण। और है मातृभाषा। मातृभाषा में मैंने चयन करके नहीं लिया, परमेश्वर ने दिया तुम्हारा ये मातृभाषा होने वाला है। किसी का गुजराती, किसी का हिंदी, किसी का बिहारी। ये मातृभाषा को तिरस्कार करना, इनका आदर न करना सबसे बड़ा पाप है। हमारे उड़िया में एक कवि गंगाधर ने उड़िया में कविता बोली, मातृभूमि मातृभाषा राम ममता जाहृदे जनमी नहीं ताकू यदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे कहीं। अर्थात जिनका हृदय में मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं है, उनको अगर तुम ज्ञानी मानते हो तो ज्ञान किसको बोला जाएगा? ये महामूर्ख है। तुम कितना भी अंग्रेजी पंडित हो। हमारा उड़ीसा में क्या होता है, 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा प्रवेश किया। अंग्रेजों को जो दलाली करके सारा भेद बताया और साथ में लेकर के उड़ीसा को पराधीन किया, इनमें से एक चरण बनना किया। तब तो जो मैट्रिक फेल हुआ वो भी एसपी कलेक्टर बन जाते थे। और जो अच्छा बोलचाल करता है, चपटाउटरी करता है, उनको वकील कर दिया गया। कोई लीगल एजुकेशन नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं। तो वो जाकर के चापलूसी करके कर्नल हार्कोट, मेजर टीचर, कैप्टन थॉमस साहब के पास हो गया। अच्छा पैसा मिलेगा इसलिए। तो मराठा के पास भी ऐसा था, जितना आक्रमणकारी थे उनका चापलूसी कर। तो जाकर के बोलता है, साहब मेरा 5 मेल मराठा के पास सर्विस करते करते एक्सपीरियंस गेन किया है, और साहब मैं आपको देख करके, आपको सी करके मेरा हेयर स्टैंड करता है। इसका मतलब होता है 5 मेल मीन्स 5 जनरेशन। वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करता है 5 जनरेशन। 5 मेल पुरुष होता है, 5 मेल मराठा के पास सर्विस करते करते एक्सपीरियंस गेन करता है। ऐसा अंग्रेजी भी कुछ लोग बोलते हैं। और ये क्यों? इसलिए कि स्वाभिमान का घोर अभाव होने के कारण। अगर विद्या आपके अंदर ये स्वाभिमान नहीं पैदा करता है तो शिक्षा निरर्थक है। ये स्वाभिमान का भाव होना चाहिए। मैं भारत के इसलिए गर्व करना चाहता हूँ, और मैं हिंदू इसलिए गर्वित होना चाहिए। मैं हिंदू इसलिए सांप्रदायिक नहीं हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन व्हिच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड द रिफ्यूजीज ऑफ ऑल द नेशंस एंड ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड। मैं इसलिए गर्वित होता हूं कि मैं इस धर्म से मिलन करता हूं, इस राष्ट्र से मिलन करता हूं जो विश्व का सबसे अत्याचारित और पददलित राष्ट्र और धर्म के लोगों को स्वीकारता है। ये हमारा भाषा ऐसा ताकतवर है। संस्कृत भाषा कोई मैन-मेड लैंग्वेज नहीं है। जैसा अंग्रेजी कुछ स्कॉलर बैठ करके ये टेबल है, ये चेयर है, ये कटे, ऐसा नहीं किया। ये विश्व का प्रतिध्वनि से निकलता है। जैसा आप नासा ने आविष्कार किया,
मैं पहले समझ नहीं पाता था बचपन, इसको देवभाषा क्या क्यों बोलते हैं, क्या देवता लोग इस भाषा में बातचीत करते हैं? अब समझ में धीरे धीरे आता है। नासा ने एक निष्कर्ष निकला, जो आलोक परमाणु का गति होता है सेकेंड पर 3 लाख किलोमीटर इसी स्पीड में जाता है, जो स्पीड में गति करता है तो संघर्ष से शब्द उत्पन्न होता है। शब्द कैसा है? ओम। और जो पृथ्वी घूर्णन करता है इसमें कैसा आता है? जो चंडिका बीज मंत्र है, आम कम तम तम रम, ऐसा वैश्विक कंपन से जो नेचुरल साउंड निकलता है, इसलिए एक स्वयं भाषा है संस्कृत भाषा, और इससे सारे भाषाएं को उत्पन्न। वास्तव में माननीय कुलपति जो बोल रहे थे ना, ऐसा कई शब्दों का अंग्रेजी प्रतिशब्द नहीं। अब आत्मा का इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या? सेल्फ यूज करता है, ये भी ठीक नहीं है। आत्मा का जो वास्तव मीनिंग है इसका कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसा बहुत सारे शब्द हैं जो सोल बोलते हैं, सोल मीन्स माइंड, एग्जैक्टली नॉट आत्मा। स्पिरिट बोलते हैं, ये आत्मा का पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होता है। जगत, इस शब्द क्या होता है? हम वर्ल्ड बोलते हैं, ये भी नहीं। गाम प्लस क्यूब, इसमें जगत बनता है अर्थात। इसलिए ये भाषा का एक विशेष शक्ति है जो भाव को व्यक्त करता है, और हमारा भाषा में ऐसा दिव्य शक्ति है। मातृभाषा सारा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से प्रमाणित होता है कि मातृभाषा में शिक्षा दान ही सबसे उत्कृष्टतम माध्यम है। अंग्रेजी को एक शब्द के एक भाषा के रूप में हम सीखना चाहिए, लेकिन दासवन करके अंग्रेजी माध्यम से सीखना ये हमारा नहीं है। कोई अंग्रेजी लोग हमारे भाषा के माध्यम से सीखते नहीं। इसलिए ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक वैशिष्ट्य है कि मातृभाषा में शिक्षा दान, हम सबको इसके ऊपर जोर देना चाहिए। हमारा सारा मातृभाषा और विशेषतः संस्कृत भाषा को इस दिशा में महत्वपूर्ण मानना चाहिए। और संस्कृत भाषा, एक वाक्य बोलकर मैं समाप्त करता हूँ, संस्कृत भाषा हर लैंग्वेज के लिए एक की लैंग्वेज है। स्वामी अभेदानंद को, अपना गुरु भाई को जब विवेकानंद ने अमेरिका बुलाया, मैं भारत जाऊंगा तुम आकर के वेदांत प्रचार का वार संभालो, उन्होंने सोच में पड़ गए। उन्होंने लिखा है पुस्तक में, मेरा अंग्रेजी इतना सबल नहीं था, इसलिए अमेरिका में अंग्रेजी सबल नहीं होने से क्या करूंगा, इसलिए मैं सोचा। लेकिन कुछ ही महीनों में मैं अंग्रेजी को आयत्त कर लिया। उन्होंने लिखा, इट वाज ड्यू टू माय कमेंडेबल नॉलेज इन संस्कृत दैट आई कुड मास्टर इंग्लिश विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। संस्कृत में विद्वत्ता होने के कारण अंग्रेजी को बहुत जल्दी मैंने आयत्त कर लिया। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, समस्त भाषा संस्कृत संभव होने के कारण संस्कृत और बाकी मातृभाषा को जोड़ देना चाहिए। और इस भाषा मनुष्य के भीतर, संस्कृति के भीतर ये करता है। और संस्कृति क्या है? हमारा राष्ट्र के साथ जो संबंध है, यही हमारी संस्कृति है। हजारों साल से सहावस्थान के कारण जो संबंध निकला है, ये हमारी संस्कृति है। माता भूमि पुत्रम पृथिव्या जननी जन्मो भूमिष्ठ स्वर्गादपि, ये हमारा संस्कृति का अभिन्न अंग है। और सामाजिक समरसता जो बोलते हैं, हमारा समाज अपना है, संपूर्ण विश्व को हमने वसुधैव कुटुंबकम बोला। क्यों? हमने ये अनुभव किया कि सारा विश्व हमारा है, सब परमेश्वर का संतान। इसके आगे जाकर के हमने निर्णय किया वेदांत में, न केवल आप मेरा ब्रदर है, सिस्टर है, यू एंड आई आर वन। वेदांत सेज वी आर नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी आर वन। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। I cannot hurt yourself without hurting myself. I cannot injure yourself without injuring myself. This oneness of the universe and divinity of man is the teaching of Vedanta. और यह हमारा सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा आधार है। और हमारा भाषा का अभिव्यक्ति, जैसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility. वैसा ही एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वाल्मीकि महामुनि जो मिथुन और कड़ुंच पक्षी को निधन करते हुए व्याध नदिका, उनको मुंह से स्वतः जो कविता निकल आया, पावरफुल एक्सप्रेशन, मां निषाद प्रतिष्ठा तोगम सरस्वती समा यत्क्रंच मिथुनादेकम अवधि कामोहित। इसका भी अति माने करुणा में विगलित मुनि पक्षी के प्रति दयापरवश होकर के मनुष्य को तिरस्कार कर दिया। इसका प्रायश्चित भगवान राम ने किया। जब जंगल को गया, पहले निषाद को आलिंगन किया, सामाजिक प्रतिष्ठा, पतिता अहल्या का उद्धार किया, कैवर्त का सेवा ग्रहण किया, सबरी का उच्छिष्ट वक्तन किया, समाज में उपेक्षित वर्गों को सामाजिक प्रतिष्ठा दे दिया, सामाजिक समरसता का प्रतिष्ठा किया। और हमारा भाषा ये सामाजिक समरसता का व्याख्यान करता है। सामाजिक समरसता क्या है? यू एंड आई। ये एकत्व का भाव सारा गीता में, सारा संस्कृत वाङ्मय में मानवीय मूल्यबोध का आधार, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज निष्ठा, बंधुवत्सलता, सब कुछ हमारा संस्कृत वाङ्मय है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ये साधु उद्योग को सबको मदद करना चाहिए
और ये उद्यम आगे बढ़ना चाहिए राष्ट्र के कल्याण के लिए भी प्रति इतना कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की जय।